Hello and welcome once again in our YouTube channel Shikipeshwar and Child Care Academy. In today's session we are going to discuss about class 7 chapter number 2, the caged parrot. The parrot who is caged, who is in a केज, पिंजरा, ऐसा पैरेट जिसे केज में रखा गया है, पिंजरे में रखा गया है. This story about parrot is written by originally Rabindranath Tagore. Who wrote it? Rabindranath Tagore. Originally, the story was written by the name of Tota Kahani. Tota Kahani. Originally, it was written with the name Tota Kahani, and the chapter that we are going to discuss for class 7 is an adaptation from Tota Kahani. In this story, what Rabindranath is wanted to tell, as you know this thing, Rabindranath Tagore was also a great educationist. He was an excellent educator. He knew the basic points and basic things of education. Let's move on about the chapter and the story. Again, discussion of the story we will do. What is this caged paradise? A parrot had been caged by a king because a king thinks the parrot is illiterate. He says the parrot does not know how to behave. He is completely illiterate. And the king wanted to teach him, to impart education to the parrot. Actually, this chapter is a mockery on today's education system. We are trying to explain you that how education works and what we have to do. There are many schools, they are imparting education, but the thing is, चीज़ें ये हो रही है कि proper जो system है उसको follow नहीं किया जा रहा है. उस particular time के period के अंदर जो education system था, रविंद्रनाथ टैगोर उस point of system को mock करते हुए ये chapter लिखते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ हार्ड वर्ड्स जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आगे हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. जो पहला शब्द आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर वो है स्क्रिप्चर्स. फिर से आप ये प्रोनाउंस करता हूँ, स्क्रिप्चर्स, व्हिच मींस होली राइटिंग्स, यानी जो ग्रंथ लिखे गए होते हैं उन्हीं को हम लोग स्क्रिप्चर्स कहते हैं. अलग अलग ग्रंथ है हमारे पास, भगवद गीता है, इस प्रकार से स्क्रिप्चर्स. द नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन, long and careful thought or discussion. Deliberation. What is deliberation? Deliberation is discussing on a particular topic and having thoughts of what and how we are going to do this thing. Suppose I would like to give you a little example. Like you are having a birthday party at your home, and for that particular birthday party your whole family is sitting together, your parents, your brothers, mother, everyone, and you people are discussing how you are going to celebrate, what new things you are going to invent for the celebration of this birthday party. And this
discussion. These thoughts are called as deliberation. Next is benighted. Benighted, illiterate, uneducated, illiterate. Gilded cage. Gilded cage, a luxurious but restrictive environment. Gilded cage. Gilded cage एक बहुत ही लग्जरी से बना हुआ, मतलब सामो शौकत जो उस पर गोल्ड से हो एंड कुछ रूबीज वगैरह लगे हों, अंदर काफी अच्छे सॉफ्ट कुशन्स हो, छोटी छोटी चीजें हो, बहुत सुंदर बना, full of luxury. Then exquisite. Exquisite, extremely beautiful, बहुत ज्यादा सुंदर, अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण, beautiful. The next is endeavor. Endeavor, effort, मेहनत that we are putting in it, our efforts. Scribes, one who copied document or books before the invention of printing machines. जब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी, आज तो आपकी बुक्स जो है प्रिंटेड आती है, कंप्यूटर पे सारा कुछ टाइप किया and then with a click there are a lot of books, but in previous ancient time people used to make copies. They used to write the books in another pages and to make copy of that document, suppose anything. And the workers who does this job are called scribes. Upkeep, the cost to keep something in good condition. किसी भी चीज को बेहतर स्थिति में रखने के लिए, अच्छे स्टेट में रखने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसे हम लोग अपकीप कहते हैं। इसका बहुत छोटा सा तुरंत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप लोग सपोज यू आर हैविंग योर होम इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी है उसमें ए बी सी डी करके कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है और उस पे अलग अलग फ्लोर पे लोग रहते हैं। अब क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो ईयरली कुछ चार्ज लेती है हर एक फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से, जो उस फ्लैट का ऑनर है, जिस फ्लैट के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं उन ऑनर से एक चार्ज जो है वो लेती है ईयरली। क्यों लेती है वो ईयरली? वो चार्ज इसलिए लेती है टू अपकीप द सोसाइटी इन गुड कंडीशन, लाइक problems like water problems, electricity problems and sanitation problems, drainage problems, color of the society, renovating problems, ये जितने भी problems एक लंबे टाइम के बाद जब आएगी तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो लोग इस सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें देते हैं, तो उस सोसाइटी को अपकीप रखते हैं, अच्छी कंडीशन में रखा जाता है विद दैट वैल्यू ऑफ मनी, और उसी को हम लोग अपकीप कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस, ग्रेट वेल्थ, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं द एज्ड पैरेंट। इस टेक्स्ट को पढ़ के और पता लगाते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या है, क्या ये कहानी हमें कहना चाहती है। Keep your pen and pencil along with your book ready. Very first chapter, second chapter, sorry. Reading. Once in a land far away. काफी दूर एक जगह, far away. There lived a parrot. वहाँ एक पैरेट रहता था, far away, काफी दूर, ठीक है ना, बहुत दूर था। There lived a parrot. It sang songs, jumped about and flew, but it never read the scriptures or cared about the customs and conventions. It was an illiterate bird. अब वो जो बर्ड थी
वो क्या थी, बहुत ही खुशमौजी थी। वो गाने गाती थी, उड़ती थी और हवा में रहती थी। लेकिन कभी भी उस बर्ड ने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, वो कस्टम्स नहीं जानती थी कि क्या है, किस तरीके से होना है, कैसे रहना है, परंपराएं, कन्वेंशंस, ये सारी चीजें से उसको कोई लेना देना नहीं था। हर समय गाना, खेलना, उड़ना और बस, और कुछ नहीं करना। अब बर्ड है तो ये सारी चीजें तो करेगी, तो इन चीजों को देखा। इट वॉज एन इलिटरेट बर्ड, वो एक अनपढ़, benighted bird थी, illiterate completely. The king was mighty displeased with the bird. जो किंग था वो बहुत ज्यादा डिस्प्लीज्ड था, नाखुश था। क्या था? डिस्प्लीज्ड, नाखुश, बिल्कुल खुश नहीं था उस बर्ड से, कंप्लीटली डिस्प्लीज्ड था कि ये कैसी बर्ड है। What a good for nothing bird, किसी काम की नहीं है ये पंछी किसी काम का नहीं है। All it does is eat fruits from the fruit garden. My fruit market is running at loss, so he summoned his ministers and ordered educate the bird. राजा कहता है कि ये पक्षी किस काम का है, किसी काम का नहीं है। क्या करता है ये? सिर्फ गाना गाना, उड़ना और मेरे फ्रूट गार्डन से सिर्फ फ्रूट्स खाना। फ्रूट गार्डन को हम लोग ऑर्चर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्चर्ड। फ्रूट गार्डन को हम लोग ऑर्चर्ड भी कह सकते हैं, फ्रूट गार्डन। फ्रूट गार्डन को हम लोग ऑर्चर्ड भी कह सकते हैं। जो फ्रूट गार्डन था राजा का, वहां पर ये जो बर्ड थी हमेशा फ्रूट्स खाती रहती थी, बहुत सारे फ्रूट्स को खाती थी। और राजा कहता है इस वजह से उसका जो फ्रूट का जो बिजनेस है, जो फ्रूट का बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। किसमें जा रहा है? लॉस में। उसे लॉस हो रहा है उसके फ्रूट बिजनेस, क्योंकि फ्रूट्स खराब कर देते थे इसलिए। तब राजा ने क्या किया? राजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते हैं। अपने मिनिस्टर्स को क्या किया राजा ने? समन किया। राजा ने अपने मिनिस्टर्स को समन किया। समन करना मतलब बुलाना, टू कॉल। समन का क्या मतलब हुआ? टू कॉल। अपने मिनिस्टर्स को बुलवाया और कहा कि इस बर्ड को क्या किया जाए? एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए। एजुकेट द बर्ड, एजुकेट किया जाए बर्ड। Let's move on. The responsibility of educating the parrot fell upon the king's nephews. जो ये responsibility थी कि इस बर्ड को एजुकेट करना है, इसकी जो जिम्मेदारी है, responsibility यानी जिम्मेदारी, ये किस पर आ गई? राजा के nephews पर। Endless hours were spent in discussion. कई घंटों तक कंटिन्यूस बैठे बैठे, endless इस डिस्कशन पे किया गया बिटवीन ग्रेट स्कॉलर्स। क्या? बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ, जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनके साथ, लर्न पर्सन। स्कॉलर किसे कहेंगे? लर्न पर्सन। जो लर्न पर्सन है उसके साथ बैठकर, बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ बैठकर डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से इस बर्ड को एजुकेशन दी जाए। The most pressing question was, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वहां पर, इम्पोर्टेंट और सबसे दबाव देने वाला प्रश्न जो था वो था What is the cause of birds' ignorance? क्या कारण है बर्ड के इग्नोरेंस का? आखिर ये बर्ड एजुकेटेड क्यों नहीं है? क्या रीजन है कि इग्नोरेंस में है, अनभिज्ञ है ये बर्ड? ये जो पैरेट है वो अनभिज्ञ है, उसे जान पहचान या किसी चीज की जानकारी क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसका? आफ्टर मच डेलिब्रेशंस, बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद, विचारों के बाद, इट वाज प्रोनाउंस्ड
that the reason the bird was benighted, कारण कि जो बर्ड है वो illiterate है, benighted है, वो रीजन क्या था? ऑफ नेस्ट। क्या बताया गया? नेस्ट, कि जो बर्ड का नेस्ट है वो उसके इग्नोरेंस का कारण है। जिस जगह पर रहती है उस जगह पर रहना उसके लिए कारण है, उसका घर जो है वो उसके इग्नोरेंस का कारण है। देखिए, the nest is made of useless straws and twigs. Straws and twigs. जो ये नेस्ट है ये कैसे फॉर्म हुआ है, किस तरीके से बना है? स्ट्रॉज से और ट्विग्स से, जो कचरा होता है, जो टूटी फूटी लकड़ियां होती हैं, जो बिना काम की होती है, उन चीजों से ये बना हुआ है नेस्ट। एंड इट इज टू स्मॉल टू कंटेन एनफ नॉलेज। उन लोगों ने कहा जो नेस्ट है वो छोटा सा है और फालतू की बेकार चीजों से बना हुआ है, इसीलिए इतनी सारी जो वास्ट नॉलेज है, वास्ट, बहुत सारी जो वास्ट नॉलेज है, ये जो वास्ट नॉलेज है इस छोटे से, स्मॉल से, पैटी से, इस पैटी नेस्ट में कैसे आएगा? आ नहीं सकता, रह नहीं सकता। इसीलिए ये वर्ड इग्नोरेंट है। Delighted with the assessment of royal scholars, everyone said, "What a great analysis!" The scholars went home merrily, armed with fees and gifts. Delighted, खुश, delighted, खुश होकर सभी लोग कि वाह क्या एनालिसिस किया है, बर्ड के इग्नोरेंस का एनालिसिस किया है। इस चीज से खुश होकर उन रॉयल स्कॉलर्स को बहुत सारा पैसा, धन दौलत हाथों में देकर घर भेजा गया। इतना महान एनालिसिस, ये पता लगाना कि व्हाई द बर्ड इज इग्नोरेंट इज बिकॉज ऑफ द नेस्ट। इस एनालिसिस को देखकर काफी प्रसन्नता हुई उन्हें और इस चीज को देखकर वो आगे बढ़े। देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। The goldsmith was called upon. Goldsmith, सुनहार। गोल्डस्मिथ कौन होता है भैया? सुनार, जो सोना बनाता है, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है, उसे हम लोग गोल्डस्मिथ कहते हैं। गोल्डस्मिथ को बुलवाया गया, समन किया गया, and tasked with the responsibility of making a gilded cage. और गोल्डस्मिथ को ये टास्क दिया गया कि आप एक गिल्डेड केज, यानी एक लग्जूरियस और रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का केज बनाए। किसके लिए? उस पैरेट के, ताकि वो बहुत सारी जो नॉलेज सीखने वाला है वो नॉलेज उसमें रख सके और उस नॉलेज के साथ रह सके। He made such an exquisite cage. अब इस गोल्डस्मिथ ने बहुत ही एक्सक्विसाइट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुंदर केज बनाया। That people from far and wide, दूर दराज के एरिया से लोग, people उसे देखने के लिए आए। Rush to have a look at it. One said, such a great endeavor. कुछ लोगों ने कहा बहुत ही महान एंडिवर है, ग्रेट एफर्ट, यानी बहुत मेहनत की है इसमें, एफर्ट लगा। अनदर कमेंट, फिर किसी और ने कमेंट किया, इवन इफ द बर्ड इज अनेबल टू लर्न, अगर मान लो ये जो बर्ड है वो लर्न नहीं कर पाई, सीख नहीं पाई, फिर भी कुछ नहीं, एटलीस्ट इट हैज अ ब्यूटीफुल केज। लेकिन कितना सुंदर, ब्यूटीफुल क्या है? केज, उसका घर, उसको केज मिला है, ब्यूटीफुल पिंजरा मिला है उसको। हाउ लकी द बर्ड इज।
ये कमेंट्स लोग दे रहे हैं। सो आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट कि किस तरीके से लोगों ने केज बनवाया है। राजा जो बर्ड को एजुकेट करना चाहते हैं, बर्ड का तो काम ही फ्लाई करना होता है, उसको कस्टम्स और परंपराओं से क्या लेना देना है। फ्रूट्स खाएगा, ऑब्वियसली फ्रूट्स ही खाएगा। अनदर थिंग, फिर जो उनके स्कॉलर्स आए, इंटेलिजेंट लोग सारे के सारे, बहुत घंटों तक एंडलेस आवर्स के में डिस्कशन किया उन लोगों ने, और डिस्कशन करके किस नतीजे पे पहुंचे कि बर्ड इलिटरेट क्यों है। रीजन क्या है बर्ड के इग्नोरेंस का? द नेस्ट, उसका घर, वो इग्नोरेंस का कारण है कि उसका घर बहुत छोटा सा है, गलत चीजों से बना हुआ है, स्ट्रॉज और ट्विग से बना हुआ है, इसीलिए वो नॉलेज नहीं रख पाते। फिर ग्रेट एनालिसिस के बाद उनको दौलत दी गई, पैसा दिया गया अपने बड़े दिमाग के लिए, और अब आगे बर्ड स्मिथ को बुलवाकर इतना सुंदर केज बनवाया है, ब्यूटीफुल केज, जिसके अंदर रहने से शायद उस बर्ड में एजुकेशन आ जाएगी, वो बर्ड लर्न करेगी, सीख जाएगी। तो लोग जो है दूर दूर से आए उस केज को देखने के लिए और कमेंट करने लगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एफर्ट, कितनी मेहनत की है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, अगर नहीं सीखा तो नहीं सीखा, कम से कम इतना सुंदर केज तो उनको मिल गया रहने के लिए। कितना लकी है वो बर्ड। कैद में रहना लकी नहीं होता। कोई कैसे कैद में रह सकता है? हम कैदी थोड़े ही। चलिए आप रीड कीजिएगा और कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर जो आपको पढ़ने हैं। Why was the king displeased with the bird? राजा जो थे वो डिस्प्लीज्ड क्यों थे बर्ड के साथ? What conclusion did the royal scholars derive regarding the bird's ignorance? बर्ड इग्नोरेंट क्यों थी, इसका रीजन क्या दिया स्कॉलर्स ने? What steps were undertaken to educate the bird? बर्ड्स को एजुकेट करने के लिए क्या, उस बर्ड को एजुकेट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? Find out the answers and then we will meet in our next class. Thank you.